Welcome to this Off the Record podcast. I'm Ambarish Baliga. This episode is on digital textile printing, and one of the key players in this segment is True Colors Limited. And we'll be talking to the management of this company, which is scheduled for an IPO on 23rd September 2025. Normally, most of the printed textiles which we see are through traditional methods rollers, block printing, even screen printing. And each of these require extensive setup time, so need to be done in bulk to be commercially viable. So most of the mass products are printed using this method. Digital printing has emerged as a niche segment, but it's catching up quite fast. And this is similar to the way we print at home, either documents or photos using an inkjet printer. The difference is quality of the ink and the size of the machine, and surely the engineering which goes into it. The sector is experiencing significant growth due to demands for customization, fast changing fashion, and eco friendly processes. The advantage are clearly fast turnaround time, shorter production runs, lower water and energy consumption. And digital textiles can be done on textile rolls as well as ready made garments. The technology also allows double side printing. True Colors is one of the key players in the sector and providing a complete range of products and services. They are suppliers of digital printing machinery as well as the key consumables like inks and sublimation paper. Now, the digital printing machinery as well as inks are imported by them from marquee suppliers globally. The sublimation paper is manufactured in their own plant. They, in fact, have a capacity of 10.16 crore meters. And additionally, they themselves are into digital textile printing with a capacity of 1.14 crore meters for polyester fabric and 28.65 lakh meters for cotton fabric. It's now my pleasure to invite and introduce Mr. Satish Panchani, one of the founders and CEO of True Colors. Welcome, Mr. Panchani. Thank you so much, Amrishi, for inviting me on your show. Thank you so much. And I introduced you as one of the founders, since there are three. Yeah, very true, sir. Yeah. Since there are three other founders who have been together for quite a long time through the thick and thin of things, and I think it's since what 2012, if I'm not wrong. Yeah, it was very early. Yeah, But earlier. 2012, 13, the Yeah. time. Yeah. And I heard Mr. Ashish Mulani, I think Mr. Sanjay Desai, in fact, was saying that you are together not because you're doing this business, but you're doing this business because you're together. I think Very true. this means a lot and talks Yes. volumes about your friendship and close relationship. So if you can go back into history and tell me as to, how all this started. Right. So very interesting journey, sir. अगर मैं बात करूं तो पहले मैं ये क्लियर करूं कि ट्रू कलर्स प्राइवेट लिमिटेड को हमने 2021 में इनकॉर्पोरेट किया था. बट Right. एज यू मेंशन दिस जर्नी स्टार्टेड अ डिकेड बैक. और अगर हम एकदम शुरू से बात करें तो मैं और संजय वी आर स्कूल फ्रेंड्स गोइंग ऑन स्कूल ऑन अ साइकिल टुगेदर. Uh-huh. Sagar joined us in a college, so like it's a school college mix up group is there. Right, right. और ये बहुत अर्ली डेज की बात है जब व्हेन वी ऑल स्टार्टेड आवर करियर. Sanjay started with some machine manufacturing company, which is they were making a conventional printing machine. Later on, they started digital printing machine. It was from China. He started on. Sagar has started his journey into some chemical field, जहाँ Mhm. पे dyes and ink की बात होती थी. And I was doing my masters at that time into Okay. from Germany in field of lasers and material processing. Uh-huh. So Uh-huh. once I came back in India, it was a break between thesis and it was kind of vacation time. And me, Sanjay, Sagar, Ashish, we met at his place discussing about what technology can be the next in India. अगर वो होता ना कि बिजनेस करने का वो जुनून पहले से ही था, Right. तो ये था कि यार क्या बिजनेस कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. डिस्कसिंग आइडिया अबाउट जर्मनी, यहाँ पे क्या हो रहा है. एंड देन वी केम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म कि डिजिटल प्रिंटिंग कैन बी द फ्यूचर इन Mm. इंडिया फॉर द टेक्सटाइल प्रिंटिंग. क्योंकि 2013-12 की बात करें ना, डिजिटल प्रिंटिंग वाज अ बज़वर्ड.
क्योंकि उस टाइम पे Exactly. टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए वो मशीन्स आ गई थी जहाँ पे सीधा ट्रांसफर होता था। बट कन्वेंशनली रोल टू रोल प्रिंटिंग वाज वेरी न्यू, एडोप्शन नहीं था, प्राइस बहुत कन्वेंशनल प्रिंटिंग से ज्यादा थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, नॉलेज नहीं था। तो इट वाज वेरी न्यू एंड वी थॉट कि यार इस डायरेक्शन में कुछ काम करते हैं। एंड Maximum, I think in those days it was logo printing, name printing. That's all used to be done. दैट्स ऑल। ज्यादा से ज्यादा टी शर्ट था कि भाई टी शर्ट पे सीधा एक फ्रेम छप जाती थी। सो Yeah, दैट yeah. वाज दैट वेरी न्यू। उस टाइम पे संजय ने एक ईरान या इराक में पहली एक प्रिंटिंग मशीन इंस्टॉल करी हुई थी। सो ही वाज हैविंग दैट ऑफ आइडिया अबाउट द टेक्नोलॉजी। सो डिसाइडेड कि भाई ये करते हैं। अब करने के लिए वो जो चाइना से जो प्रिंटर लाना था इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। तो इंडिया में कुछ हमने जो टी शर्ट के मशीन बेचते थे उनके Uh-huh. साथ एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो वी केम टू नो कि जो आर्किटेक्ट वो प्लॉटर जैसे अपन को एक नक्शा प्रिंट करके देते हैं ना, Uh, वैसे एक स्मॉल मशीन हमें अवेलेबल हुई। बट mhm. somehow वो मशीन में टेक्निकल दिक्कत ये थी, यहाँ पे जिन्होंने मशीन सप्लाई की थी उनको वो आइडिया नहीं था कि ये मशीन कैसे रन करेगी। सम Absolutely. फ्लड केम जिसने वो चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये सारे दिक्कतों के बाद इट टेक्स अराउंड 1 year टू केम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। अगेन कुछ फंड इकट्ठा किए एंड गेट द इंडस्ट्रियल प्रिंटर फ्रॉम चाइना एंड दैट्स हाउ बाय इंस्टॉलिंग फर्स्ट एवर डिजिटल प्रिंटिंग सब्लिमेशन प्रिंटिंग मशीन, और वहां से हमारी जर्नी की है वो शुरुआत हुई। Okay, nice. And generally it is said कि जो भी आपके दोस्त हैं स्कूल और कॉलेज के, दे आर दोज ट्रू फ्रेंड्स हु लास्ट अ लाइफ टाइम। क्योंकि उसके बाद राइट सर। मैक्सिमम जो आपकी दोस्ती होती है, इट्स मोर ट्रांजैक्शनल एंड मोर एग्जैक्टली। प्रोफेशनल। या राइट राइट। so again, wishing you all the best as far as your थैंक यू सो मच is सर। concerned. मैं It's और मैं will हमेशा last a यही कहता lifetime. हूँ कि हमारी जो भी अभी जो हम अचीव कर पाए या जो भी हाँ, हम काम कर रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ी हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, दैट इज लाइक जो पार्टनरशिप बिजनेसेस होते हैं उसके अंदर exactly. जो टिपिकल एक पार्टनरशिप को लेके जो नंबर ऑफ इश्यूज या नंबर ऑफ डिस्कशन है वो होते हैं, वो कभी भी आज तक इतनी सालों की जर्नी में वो कभी आए ही नहीं है। तो Absolutely. ये होता है कि आंखें मिलती है, बातें होती है, वो एक दूसरे के पता लग जाता है कौन क्या कहना चाह रहा है। ऊंची आवाज में बात हो गई, नीची आवाज में, कोई भी चीज इफेक्ट ही नहीं करती, बिकॉज इट्स स्टिल लाइक अ स्कूल एंड कॉलेज काइंड ऑफ डेज। राइट। सो वो एक एडिशनल एडवांटेज है हमारे लिए। And I just wish कि ये जो दोस्ती है ये आपके सेकंड जनरेशन में भी कंटिन्यू करे। अरे थैंक यू सो मच। आज सारे बच्चे साथ में ही पढ़ते हैं सर, आपने जो कहा वही है, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स टुगेदर राइट नाउ। बट या थैंक यू सो मच फॉर योर विशेष। और यहाँ पे आपके जो चारों के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिवाइडेड है? सो सर जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम अगर फील्ड को समझना चाहे, जैसे आपने डिजिटल प्रिंटिंग में हम क्या करते हैं वो बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। उसमें जो भी डिजिटल प्रिंटिंग का हमारा जो बिजनेस है उसके 3 मेन वर्टिकल्स हैं। जो राइट, सबसे पहला वर्टिकल है दैट इज सप्लाइंग ऑफ मशीन एंड इंक, इट्स राइट, कंज्यूमेबल। तो यहाँ पे सेल्स सेल्स हो, सर्विस टीम हो, चाहे ग्लोबल पार्टनरशिप हो, ये पूरा डिवीजन लीड करते हैं संजय भाई। सो ही ओके, इज लुकिंग आफ्टर दैट पर्टिकुलर डिवीजन। जो हमारा पेपर मैन्युफैक्चरिंग है इट इज टेकन केयर बाय सागर एंड ही इज ऑल्सो द सीएफओ ऑफ अ कंपनी। एंड ओके, जो हमारा थर्ड वर्टिकल है दैट इज द प्रिंटिंग सर्विसेज, जहाँ पे हम जो इन कस्टमर के पास अपना खुद का फैब्रिक है उनको प्रिंटिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और फैब्रिक भी प्रोवाइड करते हैं। दैट पर्टिकुलर डिवीजन इज टेकन केयर बाय आशीष। और ओके, मैं जो हूँ, मेरा जो रोल है दैट इज मोर अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, operations, overall business development activities and financial activity of the company. ओके, So नाइस। वो equally distributed है। हाँ, ठीक है। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर दैट देयर इज नो ओवरलैप और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यस, ये है कि प्रॉक्सीज है कि यस, आज अगर सागर अवेलेबल नहीं है तो पेपर बिजनेस में क्या हो रहा है दैट आई नो। करेक्ट, अगर संजय अवेलेबल नहीं है तो मशीनरीज बिजनेस में क्या हो रहा है, हाउस द स्टेटस, सागर इज देयर टू गिव अ प्रॉक्सी। बट ये है कि सबके अपने अपने रोल डिफाइंड है एंड दैट्स हाउ वी आर वर्किंग। दैट्स नाइस। और इंटरनल कंपटीशन भी जनरेट करके देता है हमारे लिए। हाँ, दैट हाँ। इज फन पार्ट। और दूसरी बात है कि ये डिजिटल प्रिंटिंग एनीवे हैज टेकन ऑफ वेरी वेल इन द लास्ट फ्यू इयर्स। राइट। जितना मुझे पता है फ्रॉम व्हाटएवर रिसर्च आई हैव डन, अबाउट 1000 लार्ज मशीन्स आर देयर इन इंडिया। ओके। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट टेल मी फ्रॉम योर कस्टमर लिस्ट जो आपने डिलीवरीज किए हैं, राइट। I mean, how many of these were actually, or percentage wise, what is the market share you have right now? राइट। सो सर अगर इसको जैसे आपने जो रिसर्च किया है ना वो बहुत परफेक्ट है। जो 1000 जो नंबर्स है दैट इज अराउंड अराउंड थाउजेंड्स यूनिट्स ऑफ डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग्स आर वर्किंग राइट नाउ इन इंडिया। जो Right. नंबर ऑफ मशीन्स है दैट कुड बी अ मच हायर। क्योंकि अगर हम हमारी जर्नी की बात करें ना तो लगभग लगभग 1300 प्लस
प्रिंटर्स ट्रू कलर्स ने इंस्टॉल किए हुए। सो ऑल ओवर इंडिया देयर मस्ट बी द बिग नंबर व्हेन वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ प्रिंटिंग मशीन्स। तो जो ओके 1000 है एकदम सही नंबर है, बट दैट आर द नंबर ऑफ प्रिंटिंग यूनिट्स अवेलेबल इन इंडिया ओके जो ओके डिजिटली फैब्रिक प्रिंट करते हाँ हैं, राइट। और अगर हम ओवरऑल मार्केट शेयर की या पूरे मार्केट की बात करें ना, तो सर क्या होता है कि सबसे पहली बात आती है कि फैब्रिक इंडिया में कितना बन रहा है। आज लगभग लगभग वीविंग जो होता है ना, दैट इज एन्युअली 7 से 7.5 हजार करोड़ मीटर तक की वीविंग होती है इंडिया के अंदर, राइट जिसमें से 70% जो है वो डाइंग होता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30% वो प्रिंट होता है। जो 30% जो प्रिंट हो रहा है ना, उसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट समझ लेते हैं 2200 से 2500 करोड़ मीटर हो गया, जो कि आज की डेट में इंडिया में कन्वेंशनली प्रिंटिंग मेथड से प्रिंट होता है। अब उसमें अगर हम डिजिटल प्रिंटिंग के शेयर की बात करें ना, तो बैक इन 2013 इट वाज समवेयर अराउंड 3 करोड़ मीटर एन्युअली। और अगर आज की डेट पे हम आके बात करें कि 2025 में, तो इट इज रफली अराउंड 180 करोड़ मीटर। सो अगर टोटल जो कन्वेंशनल प्रिंटिंग का जो मार्केट है, उसका अराउंड अराउंड 7 to 8% जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम कन्वेंशनल टू डिजिटल। और जो पहले जो कॉस्ट था से अबाउट 10 years बैक या द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग फैब्रिक यूजिंग कन्वेंशनल मेथड was say 1 rupee. राइट What was the cost of digital printing at that point of time? और राइट। अभी अभी क्या हो गया रेशियो? सो मैं अगर आपको एग्जैक्ट कॉस्ट के साथ बताऊं ना, आज जैसे कन्वेंशनल प्रिंटिंग में मिल्स में एक रेंज होती है, लेट्स से कि 10 रुपए पर मीटर से लेके 22 से 25 रुपए पर मीटर तक कन्वेंशनल प्रिंटिंग में काम होता है। वो चाहे पोलिएस्टर फैब्रिक हो, चाहे वो कोई नेचुरल फाइबर हो, जैसा कि राइट कॉटन या विस्कोस। अगर डिजिटल प्रिंटिंग आज से हम 10 साल 12 साल पहले चले जाए ना, तो ऐसा था कि वी वेर चार्जिंग 150 रुपीज पर मीटर। ओके तो जब हम मार्केट में ये कपड़ा दिखाने जाते थे ना, तो लोग इंटरेस्ट लेके देखते थे, पूछते थे, बिठा के चाय पिलाते थे, यार कैसे प्रिंट करते हो, क्या होता है। और जैसे हम प्राइस बता देते तो हमें बाहर का रास्ता दिखा हाँ देते हाँ थे कि जो कर रहे हो ना उसको समेट लो, ये चीजें यहाँ पे इंडिया में नहीं चलने वाली है, भले ही बाहर जो भी हो रहा हो। क्योंकि वो बहुत ज्यादा थे, वो बोलते थे कि इतने में तो हम पूरी साड़ी प्रिंटेड बेच देते हैं, राइट राइट। राइट तो वो बहुत ज्यादा था। पर हुआ क्या कि जो ये एडॉप्शन था ना, इनिशियली आया था एक्सपोर्ट हाउसेस के अंदर। क्योंकि उनको क्या था कि सर एक सैम्पलिंग के लिए उनको डिजाइन, आपको पता है, वहां से आते हैं, ब्रांड से आते हैं सीधा। और राइट वो जब ब्रांड से आए हुए डिजाइन को मिल में लेके जाते हैं, तो एक स्क्रीन बनानी है, कलर कर सेपरेशन करना है, फिर उसको प्रिंट करना है, तो टाइम्स ऑफ वीक। एब्सोल्युटली जबकि आपने जैसे करेक्टली मेंशन किया था कि जस्ट लाइक अवर डेस्कटॉप प्रिंटर, सीधा कंट्रोल पी दो और आप डिजाइन को प्रिंट कर लो। तो उस तरीके से हम उनको, जो चीज वहां मिल में हफ्तों लगते थे, हम यहाँ पे उनको कुछ घंटों में करके देते थे। और राइट उसके लिए उनको 150 रुपीज देने में कोई दिक्कत नहीं थी। सो वहां एब्सोल्युटली से ये जर्नी स्टार्ट हुई, कुछ एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स और कन्वर्ट हुए, वॉल्यूम बढ़ा। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये वॉल्यूम बढ़ा कि जहाँ पे हम 400 मीटर पर डे उस टाइम पे प्रिंट कर रहे थे, हमारे पास ऑर्डर 2 लाख मीटर का एक्सपोर्ट का आया हुआ था। सो वो आप मान लो कि वो जो कैटर कर पाना वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थे। तो जहां जहां मशीनें, धीरे धीरे मशीन सप्लाई करना स्टार्ट किया गया था, तो उनको काम देना स्टार्ट किया, वॉल्यूम ग्रो हुआ, रॉ मटेरियल के प्राइसेस डाउन हुए। उस टाइम पे पेपर की कॉस्ट करीबन करीबन होती थी लगभग 50 रुपए मीटर, इंपोर्ट होता था। आज हम बात करते हैं 6 रुपए मीटर, राइट। आपका सो आपका मैन्युफैक्चरिंग है हाँ हाँ, तो वो जो 10 साल में जो हुआ है ना, वो ये हुआ कि वो जो 150 रुपीज मीटर था, आज हम बात करते हैं लगभग लगभग समझ लेते हैं 20 से 30 रुपए मीटर पोलिएस्टर प्रिंटिंग के लिए, जो कि कन्वेंशनल के ऑलमोस्ट 1.2 1.5x रहा है। और जब हम विस्कोस प्रिंटिंग की बात करते हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट 2x राइट नाउ, मतलब ओके कि 50 रुपीज के आसपास पर मीटर वो प्रिंटिंग होता है। बट जैसे जैसे ये चीज नजदीक आ रही है, मार्केट खुद को और ज्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि ओपन हो रहा है पूरा कन्वेंशनल के लिए। या और टाइम भी काफी सेव हो रहा है एंड सर टाइम सेव हो रहा है, नंबर वन चीज। आज हम जानते हैं कि जो भी गारमेंट्स बनते हैं, बल्क मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ना, उसका 30% तो ऐसा होता है कि लैंडफिल में दबा होता है। उसके हाँ टैग भी नहीं निकले होके, क्योंकि फैशन चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाते हैं, सीजन चेंज हो जाता है। तो पूरा वर्ल्ड एक इस डायरेक्शन में काम कर रहा है कि सस्टेनेबिलिटी की ओर काम कर रहा है, फास्ट फैशन की डायरेक्शन में काम हो रहा है। सो पीपल डोंट वांट टू क्रिएट एक्स्ट्रा एज पर रिक्वायरमेंट दैट कैन क्रिएट, और डिजिटल प्रिंटिंग वो फिजिबिलिटी देता है। और एक पूछना था आपसे कि हाउ हाँ मेनी ऑफ योर बायर्स आर ओल्ड प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री जो पहले आई मीन दे टू प्रिंट यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स और अभी बोले कि ये नया ट्रेंड है इसमें भी जाना चाहिए तो हाँ। व्हाट परसेंटेज ऑफ योर बायर्स आर ओल्ड textile printers now taking up this new machines
And राइट। how many are those people who want to start a new business and getting into this? राइट। सो बहुत शुरू में सर क्या था कि जो नए लोग थे, Hmm. जैसे कोई ना कोई टेक्सटाइल बैकग्राउंड से आते थे, चाहे वो मान लो कोई फैब्रिक के वैल्यू एडिशन का काम हो, फॉर एग्जांपल एम्ब्रॉयडरी हो गया या बीड्स वर्क हो गया, या वो खुद वीवर हो। तो इन तरीके के लोगों ने वो इनिशिएटिव लेके डिजिटल प्रिंटिंग मशीन लगाना स्टार्ट किया था। क्योंकि Okay. मिल्स के लिए क्या था, मिल्स आर ह्यूज सेटअप, Right. उनके लिए ये टेक्नोलॉजी उस टाइम पे ऐसा था, इट इज अ टू कॉस्टली, क्योंकि वो माइंड सेट बना हुआ था वो पर्टिकुलर Absolutely. प्राइस रेंज का, राइट। तो धीरे धीरे करके वो एडॉप्शन आया है। तो इनिशियल के दिनों में जिन लोगों ने वो 400 मीटर 200 मीटर वाली मशीनें लगा के चीजों को स्टार्ट किया था और खुद को एस्टेब्लिश किया, आज वो प्लेयर है ऑल ओवर इंडिया की जो बहुत बड़ा प्रिंटिंग का यूनिट चला रहे हैं, स्पेशली इनटू डिजिटल प्रिंटिंग। Okay. तो Okay. वो हमारे कस्टमर है जहां से हमें बहुत अच्छे रिपीट ऑर्डर्स आते हैं। Uh-huh. पिछले 5 साल से जो भी कन्वेंशनल प्रिंटिंग वाले थे, वो भी खुद को डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, या ऐसा कह सकते हैं वो अपनी फैसिलिटी में डिजिटल प्रिंटिंग ऐड ऑन कर रहे हैं। Mhm. खास करके कॉटन और विस्कोस के लिए, क्योंकि उनके पास उसको प्रोसेस करने के लिए बाकी की फैसिलिटी अवेलेबल है। सो दे आर ऑल्सो द मेजर क्लाइंट जो अभी खुद को और ज्यादा मल्टीप्लिकेशन में एक्सपांड करते जाते हैं इस फील्ड के अंदर। जो छोटे जो ट्रेडर्स है, फैब्रिक ट्रेडर्स है या गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, जिनको ऐसा है कि हमारी डिजाइन को मोनोपलाइज रखना है, जो Right. ऑलरेडी फैब्रिक बेच रहे थे पर ऐसा है कि अब वैल्यू एड करके वो करना है, तो क्योंकि सेटअप कॉस्ट कम है, Mhm. सेटअप की फिजिबिलिटी बहुत इजी है, कोई परमिशंस वगैरह कम लगती है, जैसे पॉलिएस्टर प्रिंटिंग के लिए तो कोई पोल्यूशन है ही नहीं, Absolutely. तो वहां Yeah. पे कोई आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के लोग हैं जी जो इसको एडॉप्ट कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। Uh-huh. देखिए, यहाँ पे आप मशीन सप्लाई कर रहे हैं, उसके साथ यू आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द कंज्यूमेबल्स, इंक्स, राइट। सब्लिमेशन पेपर भी सप्लाई कर रहे हैं। ये सब मेजर इनपुट्स हैं। तो इसके बाद आई थिंक यू ऑल्सो प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस फॉर दीज मशीन। राइट। तो राइट। आपका एक एन्युटी इनकम भी बनता होगा एवरी ईयर फ्रॉम द मशीन्स व्हिच यू हैव सोल्ड। सो बेसिकली, आई मीन, वन इज, व्हेन डू यू स्टार्ट दिस आफ्टर सेल सर्विस टू बी एज चार्जेबल? क्योंकि 1 साल का वारंटी होता है, 2 साल का राइट। वारंटी होता है। एंड व्हाट इज द लाइफ ऑफ द मशीन? ओके। सो नंबर वन की जब हम किसी भी मशीन को इंपोर्ट करते हैं, तो वो मशीन की एक तरीके से सर समझे ना, तो असेंबलिंग या इंस्टॉलेशन कहे तो वो पूरा यहीं पे होता है। सो यस। उसके लिए करने के लिए हमारे पास 55-60 इंजीनियर्स की इन हाउस टीम है, जो कि ऑल इंडिया जहाँ पे भी मशीन सप्लाई होती है वहाँ पे पीछे उनके इंस्टॉलेशन का काम होता है। एज पर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी एक कलर प्रोफाइलिंग होती है, राइट, वो हमारी टीम करती है। और फिर आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट जो भी उनको डेली बेसिस पे हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, वो हमारे टीम से सब टीम प्रोवाइड करती है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्विस दैट वी आर लुकिंग फॉर। सेकंड चीज की उसके जो भी स्पेयर पार्ट्स है, उनकी अवेलेबिलिटी वो हम इन हाउस हमारे पास स्टॉक में रखते हैं, ताकि उनका डाउन टाइम कम से कम हो, क्योंकि उनका डाउन टाइम सीधा हमारा रेवेन्यू लॉस है, उतना नंबर ऑफ इंक, उतना नंबर ऑफ पेपर कम यूटिलाइज होगा। एंड थर्ड थिंग कि उनके प्रिंटेड जैसे आपने बताया दैट कम्स अंडर वारंटी। सो ये सारी चीजें जो होती है ना सर, इट्स टाइड अप विद द सप्लाई ऑफ इंक as a consumable. So we are not charging any extra AMCs kind of thing या सर्विस के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करना, until and unless they are using our ink, they are we are bound to give this kind of services. तो ये एक शादी के रिश्ते जैसा है कि वंस वो एक मशीन बाय करते, दे आर बिकमिंग ए लाइफ टाइम कस्टमर फॉर अस, और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी मशीन कम से कम टाइम के लिए खड़ी हो और मैक्सिमम वो यूटिलाइज हो, ताकि वो इनडायरेक्टली आपके रेवेन्यू का ही वो हिस्सा बन जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमेबल सब। सो क्लियरली इट्स एन इंसेंटिव कि वो यदि आपका इंक और सब्लिमेशन पेपर यूज कर रहे हैं, तो उसका राइट। मेंटेनेंस आपकी जिम्मेदारी है। राइट। राइट। ओके, आई थिंक दैट्स अ नाइस थिंग। यहाँ पे मैंने देखा कि मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। एक तो क्लियरली जो हम लोग बात करते हैं, सेलिंग ऑफ द मशीन्स और राइट। कंज्यूमेबल्स। एडिशनली आप डिजिटल प्रिंटिंग भी करते हो, विच वी जस्ट राइट। डिस्कस्ड। पर जनरली ये सुना जाता है कि वन शुड नॉट बी competing with one's own customers. राइट। I mean, how is it that you are managing both these divisions operating parallelly? ओके। सो ये सर हमारे एक इकोसिस्टम का ऐसा पार्ट बनाना कि जिसने कस्टमर के लिए एक जो पूरा इंडिया का या पूरे सूरत का इनिशियली एक जो इकोसिस्टम बिल्ड करना था ना, उसमें हेल्प करी। कैसे कि हमारी खुद की एक फैसिलिटी थी, आज टेक्नोलॉजी इवोल्व होती गई, तो हमने जो भी R&Ds वगैरह थे वो हमारी ही फैसिलिटी में करे। कस्टमर Uh-huh. को एक कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ कि यार यहाँ पे प्रिंट हो रहा है तो मेरे यहाँ पे भी प्रिंट होगा। क्योंकि Right, आप right. अगर अर्ली डेज में जाओ ना, तो लोगों को ये था कि यार ये काम करे, जैसे हम हमारा पहला मशीन वाज अ फेलियर जो Uh-huh. हमने किसी से लिया था, तो लोगों के लिए ये था कि एक ट्रस्ट देता था कि हाँ प्रिंट हो रहा है।
सेकंड चीज कि जब उनको ऐसा था कि यार पहले मुझे अपना 1000 5000 मीटर में पहले आपके यहाँ काम करा लेता हूँ, देन आफ्टर आई विल बाय, तो वो हम्म, उनको एक एड ऑन एडवांटेज मिला। तीसरी चीज ये थी कि एक मैन पावर इस इंडस्ट्री के लिए बिल्ड हुआ। हमारे काफी ऐसे, जैसे ट्रेनिंग पंजाब हो रहा है वहाँ पे। सेकंड लार्जेस्ट हब, तो वहां से काफी लोग हमारे यहाँ पे काफी टाइम के लिए रहे। जिन जिन कस्टमर ने मशीन बाय करी थी तो उनके ऑपरेटर्स वहां पे ट्रेन हुए, उनको ओके। ट्रेनिंग का काम हुआ। तो वो एक एक आपके लिए डेमो सेंटर तो बना ही बना, एक पूरे इंडिया के लिए वो एक ट्रेनिंग सेंटर भी बन गया। कि राइट। आपको कोई भी अगर R&D करनी है, आपको कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, आपको चीजें समझ नहीं आ रही, आपको प्रोसेसेस समझ नहीं आ रहे, तो उसके लिए वो एक सेटअप बना। तो आज भी हमारे कस्टमर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है उसको एज एन ऐसे लेते हैं कि यहाँ से अगर कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए, अगर वहां से हमें कुछ एडिशनल हेल्प मिल जाए, तो एडिशनल मैन पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सेटअप करना है, मशीन कैसे लगानी है, तो हम हमारे कस्टमर को वो चीज दिखा के उनके लिए एक एक मैं कहूंगा कि एक एड ऑन एडवांटेज हो जाता है कि यार ऐसा दिखेगा, ऐसे हाँ। चलेगा। तो इट रादर देन कॉम्पिटिंग, ये हो गया कि उनके लिए एक वो ट्रस्ट बिल हो गया कि ये चल रहा है तो ये भी चलेगा। और हम जब बात करते हैं कि जो मार्केट साइज जो है, हम प्रिंटिंग के मार्केट साइज की बात करें तो 2200 2500 करोड़ मीटर का मार्केट साइज, उसमें 180 करोड़ डिजिटल का मार्केट साइज, और उसमें हम प्रिंट कर रहे हैं, आपने जब भी मेंशन किया 1.4 करोड़ मीटर एनुअली, तो वो ऑलमोस्ट हमारे कस्टमर को वो कंपटीशन जैसा फील नहीं देता। सबका अपना अपना मार्केट है। एग्जैक्टली। ठीक है। और नाउ नाउ टॉकिंग अबाउट एनालिस्ट पर्सपेक्टिव, यदि मैं आपका रेवेन्यू स्ट्रीम देखता हूं तो बेसिकली देयर आर टू रेवेन्यू स्ट्रीम्स ब्रॉडली, ट्रेडिंग रेवेन्यू स्ट्रीम है और मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम है। राइट राइट और दोनों का यदि रेशियो देखते हैं तो 50-50 है। मशीन्स राइट। और आपके ट्रेडिंग रेवेन्यू में आता है, हाँ। और सब्लिमेशन पेपर और डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग आपका मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू में जाता है। राइट राइट। तो जनरली एनालिस्ट लोअर वैल्यूएशन देते हैं ट्रेडिंग रेवेन्यू के लिए, हम्म। क्योंकि जनरली ट्रेडिंग रेवेन्यू आपका लाइक इट इज मोर ऑफ अ कमोडिटी ट्रेडिंग के हिसाब से होता है। राइट राइट हाँ। पर यहाँ पे मुझे आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि ये मशीन्स तो स्पेशलाइज मशीन्स है। हाँ। आर दे अवेलेबल ओनली थ्रू यू इन इंडिया? आपका कुछ एक्सक्लूसिविटी है मैन्युफैक्चरर्स के साथ? एंड आई मीन योर रिलेशनशिप आई एम श्योर वुड हैव बीन फॉर द लास्ट 5 to 10 years। और यहाँ पे व्हाट सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट यू हैव विद द मैन्युफैक्चरर्स? राइट। सो जैसे हम आपने जैसे देखा होगा कि हम काफी सारे वर्ल्ड के जो रिनोन्ड मशीन मैन्युफैक्चरर है उनको इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है कोनिका मिनोल्टा। दे आर फ्रॉम जापान, जो कि एक डिजिटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखे ना तो इट्स अ ग्लोबल बेंचमार्क। राइट। राइट। सो हम उनको इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं। सो कोनिका मिनोल्टा इज द ओनली कंपनी की जिनकी वर्ल्ड वाइज 2 डीलरशिप पॉलिसीज है। तो इंडिया में देर आर 2 डीलर्स, लाइक हम हैं, एंड सेकंड वन इज देयर जो जो कोनिका मिनोल्टा को यहाँ पे उनके मशीन सप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि हॉपटेक है, ईटन है, पेंगड़ा है, स्काईजेट है, सो वी आर द सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दैट कंपनी इन इंडिया। अब ओके। ये जो डीलरशिप्स है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 1 साल के, जो हर साल रिन्यू होते हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि पिछले कई सालों से वो कंटिन्यू होते आ रहे हैं, एंड दैट्स हाउ दिस थिंग्स वर्क। सो वो आपके लिए एक हो गया कि वो आपके फिक्स सप्लायर है जहां से आपको सप्लाई आ रही है। एंड इन टर्म्स ऑफ इंक अगर देखें, देन मैंने जैसे बताया था कि वो बाउंड होती है एज अ OEM, हम वो वाइट लेबल बनाते हैं, सो ट्रू कलर्स के नाम से ही होती है। एंड वंस कस्टमर डिसाइड टू बाय द मशीन ना, दे आर बाइंग इन देयर माइंड सेट, दे आर बाइंग फ्रॉम ट्रू कलर्स। राइट। राइट। क्योंकि इट्स अ लाइफ लॉन्ग रिलेशन, राइट, इट्स नॉट अबाउट द मशीन ओनली। बट एग्जैक्टली। ये है प्लस कि प्लस योर सर्विसेज देयर। प्लस सर्विसेज आर देयर, यस। राइट। राइट। और यहाँ पे आई मीन इज देयर अ रीजनल अंडरस्टैंडिंग और यू कैन सेल एनीवेयर इन इंडिया? क्योंकि आपका तो मैंने देखा है कि इट इज अक्रॉस इंडिया। Yes, we can sell anywhere in India. ओके। ओके। Like other brands apart from Konica Minolta I mentioned, right? So we are the sole distributor in entire India. ओके। ओके। When we talk about the Konica Minolta, yes, we can sell all across the India as well. ओके। फाइन फाइन। एंड एज फार एज योर आईपीओ इज कंसर्न्ड, मैं देख रहा हूँ कि जो फंड रेज कर रहे हैं इट्स फॉर वर्किंग कैपिटल एंड रीपेमेंट ऑफ द बोरोइंग। Right, कुछ भी मैं कैपेसिटी एक्सपेंशन का नहीं देख रहा हूँ। पर इफ आई गो बैक एंड सी कि जब जब भी आपने कैपेसिटी बढ़ाया है, इट हैज गॉट यूटिलाइज क्वाइट फास्ट। और फॉर right, एग्जाम्पल सब्लिमेशन पेपर आपने शायद लास्ट ईयर कैपेसिटी बढ़ाया था। exactly, एंड FY 25 का मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी 87% ऑफ द कैपेसिटी आप यूज कर रहे हो। right, वैसे डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग का मैं देख रहा हूँ, यदि ब्लेंडेड एवरेज देखता हूँ तो 65% का है। सो right.
When is it that you'll be expanding the capacities out here? Because sublimation paper. सर ये बहुत अच्छा किया आपने, ये क्वेश्चन कर लिया हमें। सर शुरू से ही ना ये एक रहा कि इंडस्ट्री खुद को बहुत तेजी से एक्सपांड कर रही है, और Right. हमारी जो फंड की या जो एक्सपांशन की रिक्वायरमेंट होती है ना, दैट इज ऑल्सो क्विक। सो जब आज से एक साल पहले व्हेन वी डिसाइड टू गो फॉर द आईपीओ, उस टाइम पे ऑलरेडी एक्सपांशंस प्लानिंग में थे। पर Okay. अगर हमने क्या किया सर कि उस टाइम पे जो भी फंड्स अवेलेबल थे, जैसे डेट फंडिंग थी, तो हमने एक डेट ले लिया और हमने हमारी कैपेसिटी को, जैसे पेपर की कैपेसिटी अभी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 करोड़ मीटर पर मंथ है, उसको हमने ऑलरेडी बाई 2x 2 करोड़ मीटर पर मंथ कर लिया है। वो Okay. मशीन अभी फ्लोर पे इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट उसका खत्म हो गया, हो सकता है वो आने वाले टाइम में नियर फ्यूचर में वो ऑपरेशन में आ जाए। अगर मैं उस चीज के लिए एक साल वेट करता, जैसे आज के दिन मैं आपसे बात कर आईपीओ रहा हूँ और मैं आपको आईपीओ ये फंड के बोलता लिए कि वेट करते थे, नहीं हो मैं जाता। कैपेसिटी को अब सर एनहांस करूंगा, तो ये Right. कैपेसिटी एनहांस होती है आज से 12 महीने बाद। तो Okay. ये है कि हमने उसके लिए वेट नहीं किया। सिमिलर वे हमने प्रिंटिंग की भी कैपेसिटी को एनहांस किया हुआ है, बट ये हुआ सारा डेट फंडिंग से, जो हमने ठीक। उसके लिए वेट नहीं किया। तो अभी जब हम डेट रीपेमेंट की बात कर रहे हैं ना सर, तो हम कहीं ये नहीं मैसेज थ्रो करना चाह रहे कि हम कंपनी को डेट फ्री कर रहे हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि ये क्या है कि बैंक के कोलेटरल के काफी ज्यादा कंजक्शन होता है, कोलेटरल चाहिए होता है, टाइम पीरियड बाउंडेड होता है कि आपने इतने टाइम में फंड रेज किया है तो आप इतना टाइम नहीं कर सकते। सो वो सारी लिमिटेशन से हम बाहर आ जाएंगे, और आने वाले टाइम में जो हम एक्सपांशन या जो ग्रो करना चाह रहे हैं ना, उसके लिए हमें वापस वहां पे अगेन एक फ्रीडम ओपन हो जाएगी हमारे लिए। एब्सोल्युटली, तो मैं राइट। बोलूंगा इट वाज मोर ऑफ ब्रिज फंडिंग। इट यस, ऐसा कह सकते वाज हैं। मोर ऑफ ब्रिज राइट फंडिंग, हाँ। राइट राइट राइट। And I think I need to ask you this question because there's a lot of focus on sustainability. Okay. राइट। Digital printing anyway is more environmental यस friendly यस। than traditional method. और अभी मैं देख रहा हूँ कि you're also using solar power for your operations. I think राइट your facility, the complete roof is filled with solar panels. राइट। And I think last year you saved कितना 1 crore plus on ऑलमोस्ट energy. ऑलमोस्ट, Yeah, यस सर। yeah. So how much of your requirement is now covered by solar? And if it is not, then are you planning to expand your capacity? And the other thing I would like to ask you as to what are the other areas of your operations which is dictated by sustainability? राइट। सो जो सबसे पहली चीज जो आपने बताई ना कि डिजिटल प्रिंटिंग इट सेल्फ इज अ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। Right. आज आपको एक लेमन वर्ड में बताऊं ना, एक नॉर्मल फैब्रिक को प्रिंट करने के लिए कन्वेंशनल प्रिंटिंग में 12 से 15 लीटर पानी यूज होता है, जबकि Mhm. डिजिटल प्रिंटिंग की अगर बात करें ना, तो पॉलिएस्टर प्रिंटिंग में तो कोई पानी का यूज ही नहीं है। इट्स प्रिंटिंग ऑन अ पेपर एंड ट्रांसफर ऑन द फैब्रिक डायरेक्टली। और जब कॉटन विस्कोस की बात करते हैं, अराउंड 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर इज यूज। सो Okay. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% वाटर जो है वो सेव होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द डिजिटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। जो केमिकल कंजम्पशन होता है, केमिकल यूटिलाइजेशन, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 75% तक कम केमिकल यूटिलाइजेशन होता है, बिकॉज दिस इज अ सरफेस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। आपको पूरा फैब्रिक डिप करने की जरूरत नहीं होती। सो दैट आर द एडवांटेजेस। नाउ कम बैक टू योर सोलर पॉइंट, कि हमने जो अभी रिसेंटली जो एक्सपेंशन की है, सारी चीजें की, तो आज हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20,000 यूनिट पर डे कंज्यूम करते हैं। और Mhm. जो हमारी 1 मेगावाट की फैसिलिटी है, उससे हम 4,000 यूनिट पर डे जनरेट करते हैं। जैसे अभी तो बारिश का मौसम है, तो इट्स गोज डाउन टू 1,500 टू 2,000 2,500, बट मोटा मोटी अगर ऑन एन एवरेज देखें ना, इट्स 4,000 यूनिट जनरेट होते हैं। सो 20% हम वहां से यूटिलाइज कर रहे हैं। अब आपने हमारी फैसिलिटी में रूफ पे देखा है सोलर। Right. अभी मैं सर एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं बेटे का वेकेशन था, तो हम गए हुए थे महाबलेश्वर। वहां पे मैप्रो का वो फार्म बना हुआ है। जैसे एंटर करते हैं ना, तो एक रूफ बनाया है उन्होंने पैसेज के अंदर, वहां पे ऊपर सोलर फिट की है। तो Yeah. ये मुझे फील आया कि यार हमारी फैक्ट्री आप देखोगे ना, तो एज पर फैक्ट्री एक 20-20 फुट के रोड लगे हुए होते हैं, आगे 40 फीट की जगह है। तो हमने पूरा का पूरा आके मैंने ये सेटअप हमने लगाया कि यहीं पे जो खाली जगह है, वहां पे Mhm. एक फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, उसके ऊपर सोलर पैनल फिट की जाए। तो Okay. वो अभी ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो भी स्टार्ट हो जाएगी। सो इट Mhm. विल बी ए 2 मेगावाट फैसिलिटी। और Okay. फिर भी हम होंगे करीबन 8,000 यूनिट पे। Right. गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उस हिसाब से, जो डे नाउ का यूसेज है, इस हिसाब से आप 60% तक कर सकते हो। तो Okay. स्टिल 1 मेगावाट इज देयर, कि जो हम अभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आने वाले टाइम में प्लान करेंगे। सो वो Okay. हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहता है। जैसे टॉप लाइन पे बात करते हैं, तो वैसे बॉटम लाइन उसमें हाँ, अगेन सस्टेनेबिलिटी प्लेज द रोल। तो ये सारी चीजें होती है कि जो बैक एंड फोर्थ चलती रहती है। ठीक है जी। So I think it was a great interaction with you. I think you answered all my queries and cleared whatever doubts I had. So thank you for this superb interaction. या और थैंक यू सो मच अभिषेक। wishing you the very best आपके आईपीओ के लिए and थैंक your यू future सो growth. मच।
Thank you so much, sir, for covering us. Thank you.